हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। मैंने आर्टिकल्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने ए और एन को हमें कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है ये बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले उस वीडियो को देखो। देन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो देखते हैं अब आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं। Let us quickly revise what we have learnt in the previous video. So, what are articles? An article is a word used to modify a noun. And what is noun? Noun is the name of a person, place, object or an idea. Articles are the words that are used before a noun. Modifies a noun is an adjective. Describe a noun as specific or general. A and the are articles. We use a before a word starting with a consonant sound, and we use an with the word beginning with a vowel sound. A and an are used while we are referring to a single object or a person. For example, an apple or a chair. And they are used before a noun that is mentioned for the first time. They are used to express quantity before professions, before nationalities and religion. A and an are not used before plural nouns, abstract noun, name of festivals, sports and meals. Now we will learn about the pronunciation of word the. If we are using this word before a word beginning with vowel sound, then we will pronounce it as the. For example, the elephant, the American, the army. And if we are using this word before a word that is beginning with a consonant sound, then we will pronounce it as the. For example, the British, the book, the table. Now we will see where we will use the word the. We use it while we are speaking about a particular person or a thing. For example, have you heard the news? Here we are talking about a particular news. The man who wrote this is famous. We use the before superlatives and ordinal numbers. For example, this is the second time I have called you. New York is the largest city in the world. Largest is the superlative degree of adjective. So we will use the. This is the last chapter of the book. Before the words like first and last, second, third, we use the. We use the before a surname to denote a family. For example, the Mehtas have invited you to the dinner. The Smiths are going to play with us. We use the before a person or a thing that is mentioned for the second time. For example, I met a girl today morning. The girl was very beautiful. Here we are mentioning the same girl that we have mentioned in the first sentence. We use the before unique objects. For example, the sun, the moon, the planets, the Tropic of Cancer. Before a proper noun only when it is qualified by an adjective. अगर हमें किसी का नेम गिवन है, कोई प्रॉपर नाउन हमें गिवन है, तो हम उससे पहले अगर हमें उसकी कोई विशेषता गिवन है, कोई एडजेक्टिव गिवन है, तो उसके साथ भी हम द यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट हिमालयाज. Before a singular noun
टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल्स या थिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। हेयर वी आर talking about a particular species of animals, that is dog. Before newspapers and magazines, किसी न्यूज़पेपर और मैगजीन के नेम से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदू। बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स एंड सिनेमाज, किसी बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, सिनेमाज या म्यूजियम्स के नेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द राष्ट्रपति भवन, द कुतुब मीनार। बिफोर एथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, किसी भी बेसिस पे किसी भी ग्रुप को अगर डिवाइड किया गया है, कोई ग्रुप फॉर्म किया गया है, कोई कम्युनिटी फॉर्म्ड है, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिश्चियंस, द इंग्लिश। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, for example, the Gita, the Bible. We use the before abbreviations. किसी की शॉर्ट फॉर्म हमें गिवन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द UK, द USA, द WHO। बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, अगर हम किसी इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। अब हम देखेंगे कि द का यूज़ हम किसके साथ नहीं करते। विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नेम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, हम इसमें इंडिया से पहले द का यूज़ नहीं कर रहे। जर्मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर। विद द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, वी डोंट यूज़ द with the name of meals. Example, I like to eat breakfast early. Please make a note that we don't use the before the names of professions, festivals and sports. The का यूज़ हम किसी भी प्रोफेशन, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स या किसी कंट्री के नेम से पहले हम नहीं करते। So let us revise what we have learned in this video. हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम द का यूज़ कहाँ नहीं करते। तो हम द का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। द का यूज़ हम करते हैं किसी सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट। द का यूज़ हम करेंगे किसी भी सरनेम से पहले टू डिनोट अ फैमिली। द का यूज़ हम करते हैं अगर हम किसी भी थिंग को या पर्सन को सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हैं या फिर हम किसी यूनिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। द का यूज़ हम करेंगे अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन गिवन है और उससे पहले हमें उसकी कोई विशेषता गिवन है, दैट इज़ एडजेक्टिव गिवन है। द का यूज़ हम करेंगे अगर हम किसी सिंगल क्लास ऑफ एनिमल्स या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ग्रुप। द का यूज़ हम किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर के नेम से पहले करेंगे। एंड वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स एंड सिनेमाज। कोई हमें बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, म्यूज़ियम, किसी भी बिल्डिंग का नेम हमें गिवन है उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द राष्ट्रपति भवन। We use the before ethnic groups and communities. We use the before the names of holy books. Before abbreviations. Before the names of inventions. We
We don't use the with the name of countries, with the name of languages, subject, meals, professions, festivals or sports. Thanks for watching the video. If you like this video, please press the bell icon and also share it with your friends.